ہے تو قرآن کہتا ہے آپ کی پیشانی طٰہٰ ہے، آپ کی جبین اقدس طٰہٰ ہے، آپ کے لب وحی یوحا ہے، آپ کا کلام کلام خدا ہے، آپ کی ہر بات وحی خدا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، آپ کی ذات دلیل خدا ہے، آپ کی ذات دلیل خدا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، آپ کی مار خدا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ کا دیدار خدا ہے۔ مرعانی فقط رعل حق، آپ آئینہ حق نما ہیں، آپ جلوہ شان کبریا ہے، آپ وجہ ظہور امکا ہے، صدر محشر و میر خوبا ہے، صاحب تاج و معراج آسما ہے، عرش و فرش جن کے زیر فرما ہے، جن کی حاکمیت پر قرآن گواہ ہے، جن کے آگے درخت جھک جاتے ہیں، جن کو جانور سجدہ کرتے ہیں، جن کے حکم سے سورج پلٹ آتا ہے، جن کے اشارے سے چاند پھٹ جاتا ہے، جن کا حکم پا کر کنکریوں میں قوت گویائی آ جاتی ہے۔ ارے نبوت میں، رسالت میں، کمالات و فضیلت میں نہیں ملتا تمہارا کوئی ثانی یا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرات، اچھا یہ نبی کی شان وہ ہے جو قرآن نے بیان کی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یار ہم تو قرآن کو نہیں مانتے، حق اور سچ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے میرے نبی کو ہم بھی اچھا کہتے ہیں، اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ انہیں غیروں نے بھی اچھا کہا۔ بہت پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی یورپ میں، بہت پہلے ایک یورپ میں کتاب لکھی جس کے رائٹر کا نام ہے کوئٹے، اور اس کتاب کا نام ہے آپ مچل جائیں گے، یقیناً آپ سنیں گے تو سبحان اللہ ایٹومیٹک کہنے لگیں گے، کیونکہ یہ تو وہ باتیں تھیں جو قرآن نے کہی، ہم نے کہی۔ ہم اپنے نبی کو اچھا کہیں، بھائی کو اچھا کہے تو کیا کمال؟ کمال تو تب ہے کہ غیر بھی اچھا کہے۔ تو یورپ میں کتاب لکھی جس کا نام تھا کوئٹے، اور اس کتاب کا نام تھا دا 100 گریٹ پیپل ان دا ورلڈ، یعنی اس نے 100 ایسے لوگوں کو اس کتاب میں لکھا جو اس کی نظر میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ گریٹ تھے، سب سے زیادہ اچھے تھے۔ ان لوگوں کا ذکر اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اس کتاب کا نام رکھا دا 100۔ لکھنے والا کون ہے؟ یورپ کا عیسائی۔ کون ہے لکھنے والا؟ عیسائی۔ لیکن اس نے جو 100 لوگوں کا نام لکھا، یہ کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں گے نا تو آپ کو موبائل پہ بھی مل جائے، آپ گوگل میں سرچ کریں گے یہ کتاب نکل کے سامنے آ جائے گی۔ لکھنے والا عیسائی، نام کوئٹے، کتاب کا نام دا 100 گریٹ پیپل ان دا ورلڈ۔ 100 لوگوں کا ذکر کیا، 100 لوگوں کا ذکر کیا۔ آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ کہیں گے آشاش، آپ کہیں گے سبحان اللہ، کیونکہ ذکر کرنے والا میں نہیں، ذکر کرنے والا مصطفیٰ کا غلام نہیں، ذکر کرنے والا نبی کا عاشق نہیں، بلکہ عیسائی ہے۔ عیسائی نے کتاب میں 100 لوگوں کا نام لکھا۔ اب 100 لوگوں میں سب سے پہلا ذکر اگر کسی کا کیا ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا ذکر سب سے پہلے۔ آپ سرچ کریں گے، کتاب آئے گی، کتاب کھولیں گے، پہلے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ جب وہ کتاب لکھی گئی، اس کے ترجمے ہوئے، لوگ پڑھنے لگے، دنیا میں وہ مشہور ہونے لگی۔ جب عیسائیوں کو خبر ملی تو عیسائیوں نے کہا کہ یار یہ کوئٹے بڑا پاگل ہے، بڑا بے وقوف ہے، اس نے محمد کا نام سب سے پہلے لکھ دیا، چلو چل کے ذرا کوئٹے کو کوستے ہیں، ذرا اس کے پاس چلتے ہیں۔ پاس پہنچے اور جا کر کے کہا ہے کوئٹے تو بڑا بے وقوف ہے، بڑا بے وقوف ہے کہ تو نے ایک کتاب لکھ ڈالی جو بڑی مشہور ہو رہی ہے۔ کوئٹے کہنے لگا کہ میں بے وقوف کہاں ہوا بھائی، جب میری کتاب دنیا پڑھنے لگی، مشہور ہونے لگی، تو میں بے وقوف کہاں ہوا؟ میں تو سمجھدار ہو گیا، میں تو دانشور ہو گیا، میں تو عقل والا ہو گیا۔ کہا تو کتاب لکھتے وقت بھول گیا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے یاد تھا کہ میں عیسائی ہوں۔ کہا جب تجھے یاد تھا تو تجھے پگلے، اگر بے وقوف، تجھے اگر ذکر محمد کا کرنا تھا تو اپنے پیغمبر کے بات کرتا، اپنے نبی کے بات کرتا، اپنے رسول کے، اپنے نبی کے بات کرتا۔ تو نے پیغمبر کا ذکر محمد کا پہلے کر ڈالا۔
बेवकूफ तू सोच, तूने ऐसा किया क्यों? तो मालूम है कोयटे क्या कहता है? एक ईसाई बोलता है, वो नादानों, मैंने ये जो बात कही है अटकल नहीं कही है, मैंने ये बात अटकल पच्चू नहीं कही, यूं ही हवा में तीर नहीं चला दिया, बल्कि मैंने स्टडी की है, मैंने मुताला किया है, मैंने रिसर्च किया है, मैंने पढ़ा है, उसके बाद कहा है। मैंने जनाबे आदम को भी पढ़ा है, जनाबे शीश को भी पढ़ा है, हजरत नूह को भी पढ़ा है, हजरत जकरिया को भी पढ़ा है, हजरत इसहाक को भी पढ़ा है, हजरत इस्माइल को भी पढ़ा है, हजरत यूसुफ को भी पढ़ा है, हजरत याकूब को भी पढ़ा है, और जनाबे ईसा को भी पढ़ा है, जनाबे ईसा को भी पढ़ा है। इन्हें पढ़ने के बाद मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पढ़ा है, मैंने उनकी सीरत को भी पढ़ा है। जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ी और इन सब की सीरत पढ़ी, तो पुकार कर कोयटे कहता है, ए लोगों, किसी की उम्र 950 साल, किसी की उम्र 700 साल, किसी की उम्र 800 साल, किसी की उम्र 600 साल, किसी की उम्र 500 साल, किसी की उम्र 300 साल, किसी की उम्र 200 साल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने पढ़ा, ऐलान नबूवत के बाद सिर्फ 23 साल, कितने? ऐलान नबूवत के बाद सिर्फ 23 साल, सिर्फ 23 साल, 10-13 साल मक्के की जिंदगी, 10 साल मदीने की जिंदगी। और कोयटे कहता है, और मक्के की जिंदगी कैसे गुजरी? मक्के की जिंदगी, कोयटे कहता है, मक्के की 13 साल जिंदगी ऐसे गुजरी, राह से गुजरते कांटे पड़े हैं, कांटों से गुजरना पड़ रहा है, मोहम्मद दुआएं दे रहे थे, गलियों में गुजरते लोग कूड़ा डालते, मोहम्मद दुआएं दे रहे थे। मेरे कोयटे कहता है, मोहम्मद की शान तो देखो, 13 साल मक्के की जिंदगी ऐसी गुजरती है, कभी कांटों से गुजर रहे हैं, कभी जिस्म पर कूड़ा डाल रहा है, सजदे में जाते हैं, ओझड़ी डाल दी जाती है, मोहम्मद दुआएं देते हैं, ताइफ में जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, मोहम्मद बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दुआएं देते हैं। कूड़ा डालने वालों, तुम्हें भी दुआएं हैं, कांटे बिछाने वालों, तुम्हारे लिए भी मोहम्मद दुआएं देते हैं, पत्थर मारने वालों, तुम्हारे लिए भी दुआएं हैं। कोई पुकारता है, मोहम्मद की 13-23 साल जिंदगी, ऐसी जिंदगी गुजरी, और ये इतनी लंबी जिंदगी लेकर के आए। ऐ लोगों, कान खोल के सुन लो, खुदा की कसम, खुदा की कसम, इन सारे अंबिया की जिंदगी एक तरफ रख लो, मोहम्मद की जिंदगी का लम्हा एक तरफ रख लो, मोहम्मद की जिंदगी का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे नबी की जिंदगी का कोई जवाब नहीं। गांधी जी वो है जिन्होंने देश आजाद कराया। तुम्हें यही पता है कि देश गांधी जी ने आजाद कराया, और तुम्हें पता ही नहीं, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ते नहीं, इस्लामी उलमा को पढ़ा नहीं, तुमने कभी तारीख को पढ़ा नहीं, तारीख का मुताला तुम करते नहीं, क्या होगा कि इस देश को किसने आजाद कराया? हजरत, ये बात तो सच है कि देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का भी हाथ था, लेकिन ये भी सच है कि उलमा इकराम ने भी फांसी के फंदों को चूमा है। 1857 में जब इस देश पर मन के तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों की हुकूमत थी, सबसे पहले अगर किसी ने फतवा जिहाद दिया था तो वो कौन था? एक आलिम दीन था। आलिमों को बुरा कहने वालों, इमामों से जलने वालों, आलिमों की इज्जत न समझने वालों, जब इस देश पर किसी ने अंकुश नुमाई और इस देश को लूटने की कोशिश की, तब भी अल्लामा फजल हक खैराबादी की शक्ल में एक आलिम दीन खड़े हुए और जिहाद का फतवा दे दिया। लोगों, जो हमारे देश का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे देश का वफादार नहीं वो हमारा वफादार नहीं, जो देश का गद्दार वो हमारा गद्दार है। ये कौन कहता है? मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, इसलिए कि आज दुनिया में, आज हमारे हिंदुस्तान में हमें कहा जाता है कि तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, हमें कहा जाता है और तुम सुन लेते हो क्योंकि तुम्हें इल्म नहीं। आज मैं उन दुनिया के दहशतगर्दों को बता देना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए उलमा ने फांसी के तख्तों को चूमा था। 1857 में सबसे पहले फतवा जिहाद अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया। फिर क्या मिला? फतवा जिहाद दे दिया तो काले पानी की सजा सुना दी गई, काले पानी की सजा सुना दी, लेकिन उसके बाद भी लोगों का जोश नहीं थमा, लोगों का बलबला नहीं थमा। अंग्रेज परेशान, क्या किया जाए? एक अंग्रेजी सिपाही अल्लामा के पास भेजा और जाकर के सिपाही, अंग्रेजी सिपाही क्या कहता है? जाकर के कहता है,
अल्लामा अपना फतवा जिहाद वापस ले लो, हम तुम्हें इज्जत की जिंदगी देंगे, हम तुम्हें इज्जत की जिंदगी देंगे। मालूम है मौत के आलम में भी तड़पते हुए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेजी सिपाही के चेहरे पर थूक दिया था और थूक के कहा था, कुत्ते की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर हुआ करती है। हम मदीने वाले के गुलाम हैं, मदीने वाले की चाकत पर बिक चुके हैं, अब किसी दुनिया भी कुत्ते के आगे बिक नहीं सकते, किसी भी दुनिया भी कुत्ते के आगे बिक नहीं सकते। ये मैं बताना ना ये चाहता हूँ कि इस देश को आजाद कराने में अगर महात्मा गांधी का हाथ था तो इस देश को आजाद कराने में अल्लामा फजल हक खैराबादी का भी हाथ था। इस देश को आजाद कराने में अगर एक तरफ भगत सिंह थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जौहर भी इस देश की आजादी में हिस्सा ले रहे थे। इस देश को आजाद कराने में अगर एक तरफ दूसरे पटेल थे तो इस देश को आजाद कराने में दूसरे मुसलमान उलमा और तमाम मोमिनीन हिस्सा ले रहे थे। हम सब ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। मैं कह रहा था गांधी जी, तो गांधी जी का भी नाम सरे फहरिस्त है। गांधी जी क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में? गांधी जी ने कहा, ऐ लोगों, गांधी जी ने लिखा है, ऐ लोगों, अगर मेरे पास करबला जैसे, क्या कहा, अगर मेरे पास करबला के 72 सिपाहियों जैसे सिपाही होते तो 100 साल न लगते, मैं 24 घंटे में इस भारत को अंग्रेजों से आजाद करा देता। 24 घंटे में इस भारत को अंग्रेजों से आजाद करा देता। ये मेरे इस्लाम की शान और ये पैगंबर आजम की अजमत है कि जिसकी अपनों ने भी तारीफ की और गैरों ने भी तारीफ की। अपने भी तारीफ करते हैं, गैर भी तारीफ करते हैं, मजा तो उसी चीज में है। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इस्लाम क्या है? इस्लाम अमन का पैगाम देता है, शांति का प्रतीक है। इस्लाम अमन का मजहब है, सुकून का मजहब है। आज पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी। अमेरिका देखो इस्लाम के पीछे, यूरोप देखो इस्लाम के पीछे, दहशतगर्द देखो इस्लाम के पीछे, इन जालिमों को देखो इस्लाम के पीछे। जो है वो कह रहा है कि इस्लाम को मिटा देंगे, इसे खा लेंगे, इसे फाड़ देंगे, इसे तोड़ देंगे। इस्लाम कोई मिठाई का डिब्बा है जिसे हाथ में लेके खा जाओगे? इस्लाम कोई हलवा है कि उसे चट कर जाओगे? अरे इस्लाम तो खुशबू है, न कल मिटी थी न आज मिटी है, न सुबह क़यामत तक कोई इसे मिटा सकता है। तुमने देखा नहीं हमारे कुरान को बदलने की लोगों ने कोशिशें की। मक्के के जालिमों ने चाहा कि हम कुरान को तोड़ फोड़ दें, कुरान को बदल दें, कुरान को बदल दें। और तुम व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से देखते हो, कोई कुरान को फाड़ रहा है, कोई कुरान को जला रहा है, कोई कुरान को मिट्टी में दबा रहा है, कोई कुरान पर जूते मार रहा है। ये दुनिया के जालिम, ये सितमगर, ये कुरान को फाड़ने वाले, ये कुरान को पानी में डालने वाले, ये कुरान को अपनी चप्पलों से रगड़ने वाले, ये समझ रहे हैं कि मेरे फाड़ने से कुरान खत्म हो जाएगा, कुरान खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह की कसम खा के शाहनवाज अशरफी कहता है कि यूरोप तबाह हो जाएगा, कुरान का मजा बाकी रहेगा, अमेरिका नेस्त नाबूद हो जाएगा, कुरान का मजा बाकी रहेगा, दुनिया के दहशतगर्द कुरान को बुरा कहने वाले खत्म हो जाएंगे। मगर कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहे। हमारे इस्लाम को दुनिया पीछे पड़ी है, आए इस्लाम को मिटा दो, तबाह कर दो, कुरान को बदल दो। मगर हमारे अल्लाह ने क्या फरमाया? ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ला तब्दीला लिकलिमात, अल्लाह के कलिमात को कोई तब्दील नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। को मिटाने की साजिशें हुई थी, आज भी हो रही है। कल भी इसी कुरान को मक्के में मिटाना चाहा था। किसने? अबू जहल चाहता था कुरान न बढ़े, अबूतुबा चाहता था कुरान न बढ़े, शेबा चाहता था कि कुरान न फैले, कुरान न आए, हम मिटा देंगे, हम इसे खा जाएंगे। मगर तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, मक्का बदल गया, कुरान न बदला। मदीने ने चाहा था कुरान को बदल दे, मगर तारीख गवाह है कि मदीना बदल गया, मगर कुरान न बदला। और तुमने कुछ दिन पहले सुना होगा, लखनऊ से एक सरफिरा उठा था जिसका नाम वसीम रजवी था कि मैं कुरान को बदल दूंगा, कुरान को बदल दूंगा। कोर्ट में दाखिल कर दिया कि कुरान की आयत निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। मगर तुमने देखा कुरान बदला? अरे वो बदल गया,
वो वसीम से त्यागी बन गया मगर कुरान न बदल सका। वसीम से त्यागी बन गया, कुरान न बदल सका। अरे वो कुरान जो मक्के में न बदला जा सका, वो कुरान जो मदीने ने न बदला हो, वो कुरान, इस कुरान के लिए मुस्तफा जान रहमत ने अपनी जान को दांव पर लगाया है। इसी तहफ्फुज़ कुरान के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट से पत्थरों को बांधा है। इसी कुरान के लिए मुस्तफा की राह में कांटे बिछाए, बर्दाश्त किए। इसी कुरान के लिए मुस्तफा ने अपने दंदाने मुबारक को शहीद, कुरान के लिए मुस्तफा ने पत्थरों की बारिशों को सहा है। इसी कुरान के लिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को कुर्बान किया है। अरे इसी कुरान के लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सदाकत के जौहर दिखाए हैं। इसी कुरान के लिए उमर ने अदालत के जौहर दिखाए हैं। इसी कुरान के लिए उस्मान ज़ुल्लुरैन ने अपने माल को सखावत के दरिया की तरह बहा दिया है। इसी कुरान के लिए अली ये मुर्तजा ने शुजाअत के जौहर दिखाए हैं। और जब इस कुरान को कर्बला की जमीन पर अटैक किया गया और यजीदियों ने चाहा कि हम कुरान को मिटा देंगे, हम खत्म कर देंगे, हम कुरान को बदल के रख देंगे, मगर क्या होता है, फातिमा का लाल खड़ा हो जाता है, अली का नूर नजर खड़ा हो जाता है, अली का लाडला खड़ा हो गया। और हुसैन इब्न अली ने कहा, ऐ जालिमों, कुरान को बदलने की कोशिश करने वालों, हरगिज हरगिज तुम कुरान को नहीं बदल सकते। अगर मेरे औलो मोहम्मद की कुर्बानी चाहिए, अली के लाल ने, फातिमा के नूर नजर ने, नबी के लख्ते जिगर ने, हुसैन इब्न अली ने अब्बास अलमबरदार के बाजू दिए इसी कुरान के लिए, औलो मोहम्मद की बचपना दिया इसी कुरान के लिए, अली असगर का खून दिया इसी कुरान के लिए, कासिम की जवानी दी इसी कुरान के लिए, अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़ते देखे इसी कुरान के लिए, और अपनी गर्दन को कटा दिया मगर कुरान पर आंच नहीं आने दिया। मेरे हुसैन ने ये सब कुछ करके दिखाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि तारीख कभी मौजों में कदम लेते हैं और खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना शाहनवाज साहब क़िबला, नारे तकबीर। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। फिक्र ना करो, इसलिए मैंने पहले कहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और बहुत पहले मुरादाबाद की सरजमीन से जिगर मुरादाबादी ने कहा था, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं, और बेफायदा आलम नहीं, बेसूद गम नहीं। तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। हजरात गिरामी वक़ार, मैं बहुत लंबी बात न करते हुए अपनी बात को समेट कर और बहुत जल्दी तुम्हें इस्लाम की हक़ानियत तक पहुंचा कर और पैगाम इस्लाम देकर बस अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। ये इस्लाम है मेरे दोस्तों, ये इस्लाम है। दुनिया इससे डरा रही है। तुमने सुना होगा, टीवीओ पे देखा होगा, मोबाइल पे सुना होगा, डिबेट अगर सुनते होगे तो सुना होगा, जब बात आती है इस्लाम की तो कहते हैं कि दहशतगर्द, दहशतगर्द। जब कहा जाता है तो दहशतगर्द के नाम से पुकारते हैं, डराते हैं लोगों को कि इस्लाम में कभी औरतों को दबाया जाता है, औरतों के हुकूक को दबाया जाता है। इस्लाम में औरतों को खुली छूट नहीं दी जाती। ये कहते हैं कि इस्लाम औरतों को दबाता है। मैं कहता हूँ इस्लाम दबाता नहीं, बल्कि इस्लाम औरत की इज्जत बढ़ाता है, इस्लाम औरत की इज्जत बढ़ाता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, औरत को छूट दे दी कि जब आदमी नौकरी कर सकता है औरत क्यों नहीं करेगी भाई। तो कहते हैं हाँ, अब औरतें जो पढ़ी लिखी और जो बाहर निकलने वाली औरतें हैं, जिन्हें बाहर का मजा पड़ गया, वो भी आती है टीवियों पे, और वो भी आती है और आकर के कहती है कि हाँ, जब मर्द निकल सकता है तो औरत क्यों नहीं निकल सकती, मर्द नौकरी कर सकता है औरत क्यों नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम इज्जत देता है या ये नौकरी करा के औरत को इज्जत दे रहे हैं। इस्लाम ने कहा घर में रहो, बच्चों की खिदमत करो, शौहर की खिदमत करो, बच्चों की देखरेख करो, घर के निजाम को औरत संभाले और बाहर के निजाम को मर्द संभाले, ये इस्लाम ने कहा। और इन्होंने क्या कहा, मर्द बाहर जाएगा तो तू भी जाएगी, मर्द फौजी बनेगा तो औरत भी बनेगी,
مرد ڈاکٹر بنے گا عورت بھی بنے گی, اور مرد پائلٹ بنے گا عورت بھی پائلٹ بنے گی, مرد آرمی میں جائے گی عورت بھی آرمی میں جائے گا. اچھا ایک آدمی جو ڈاکٹر ہو اور اس کی بیوی اسے مل جائے پائلٹ, مرد ڈاکٹر عورت پائلٹ, ڈاکٹر مرد, لکھنؤ میں اس کی پوسٹنگ ہو گئی, عورت کی پوسٹنگ ہے دلی, وہ دلی میں رہ کر ہوائی جہاز کا اصول یہ ہے, جو بیٹھے ہوں گے اللہ کرے تمہیں سب کو ہوائی جہاز کا سفر کرائے, سب مدینے کو جاؤ, جب ہوائی جہاز میں عورت کو تمہیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہیں ترچھی نگاہ سے دیکھے تو تمہیں مسکرا کے بات کرنی ہے. آپ کھانا پیش کریں گی اور آدمی اگر ڈانٹے گا تو تمہیں مسکرا کے بات, آپ چائے لائیں گی اور اگر کوئی آدمی دھوکے سے تمہارا ہاتھ بھی ٹچ کر دے تو تمہیں کچھ نہیں کہنا, تمہیں مسکرا کے جواب دینا ہے. یہ دنیا کا قانون. عورت کو باہر نکال کے پائلٹ بنا کے اگر وہ ڈانٹ رہی ہے, اگر وہ عورت چائے پیش کر رہی ہے, ہاتھ ٹچ ہو گیا تو تمہیں مسکرانا, آدمی ڈانٹ رہا ہے تو تمہیں مسکرانا. یہ باہر کے سماج کی عورت اور ایک اسلام کی عورت, اسلام کا ماننے والے کی عورت, قرآن پڑھنے والی عورت, کلمہ پڑھنے والی عورت, رسول کی شریعت کو ماننے والی عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہے, اپنے گھر میں بیٹھی ہے, کھانا پکا رہی ہے, بچے کہتے ہیں امی کھانا, تو ڈانٹتی ہے بیٹھے رہو تھوڑی دیر میں لینا, بیٹھے رہو تھوڑی دیر میں لینا. کبھی کبھی یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شوہر کو بھی پھٹکار دیتی ہے, بولے بیٹھے رہو خامو, تمہیں کیا پتا ان بچوں میں کھانا کیسے بنتا, تمہیں کیا پتا. تو شوہر بھی مسکرا کے نکل جاتا ہے کہ یار یہی جانتی ہے کہ ان بچوں کی تکلیف کیسی ہے, یہ گھر کے نظام کو یہی سنبھالتی ہے. تو اب بتاؤ, فیصلہ کرو, وہ عورت جو کھانا ڈانٹ ڈپٹ کے کھلا رہی ہے وہ عزت والی ہوئی, یا وہ پائلٹ عورت کہ جس کے ہاتھ کو چھوا جا رہا ہے وہ مسکرا رہی ہے, لوگ ڈانٹ رہے ہیں وہ مسکرا رہی ہے, لوگ برا کہہ رہے ہیں وہ مسکرا رہی ہے. وہ عزت والی ہرگز ہرگز نہیں. عزت اس کی ہے کہ جو گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے کھانا کھلائے. تم نے کہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, لیکن تمہارے ہی نیتا بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو لوٹ رہے ہیں. وہ کون ہیں جن کے مقدمے چل رہے ہیں, وہ کون ہیں جو بیٹیوں کی رکشا نہیں کر پا رہے. میں بتاتا ہوں اپنی محمد کی بات, میرے آقا نے بہت پہلے کہا تھا, اے لوگوں بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ, یہ آندولن مصطفیٰ نے چلایا تھا, اے لوگوں کسی اور نے نہیں, تمہارے نبی نے چلایا تھا, ہمارے نبی نے چلایا تھا. بیٹی بچاؤ اس لیے کہ اس زمانے میں بیٹی کو دبایا جاتا تھا. اور یہ ہندوستان کے لوگ جو اپنا سینہ اونچا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بیٹی کی رکشا کریں گے, اسی ہندوستان کی زمین پر عورت کو پتی کی چتا پر جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا. یہ رسم ہندوستان کی تھی, نہ عرب میں عربستان میں عورت محفوظ تھی, نہ ہندوستان میں عورت محفوظ تھی. وہر قرآن وہر پیغمبر اسلام کہ جب تو آیا ہے تو نے بیٹی کی عظمتوں کو بچایا ہے, جب تو آیا ہے تو نے عورت کی آبرو کو بچایا ہے, جب اسلام تو آیا ہے کہ تو نے عورت کی عزت کو چاند پر اوپر بٹھا دیا. اور میرے پیغمبر نے فرما دیا جب تک یہ عورت بیٹی بن کر اپنے باپ کے گھر رہے گی, اپنے باپ کی عزت کو بڑھاتی رہے گی, اللہ اس گھر میں رحمتیں بھیجتا رہے گا. اور جب بیٹی بہو بن کر اپنی سسرال جائے گی, اور جب اپنی سسرال جائے گی تو اپنے شوہر کی عزت کو بڑھائے گی, اللہ رحمت شوہر کے گھر میں بھیجے گا. اور جب یہ عورت ماں بن جائے گی, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اگر وقت کا مفتی بھی ہے, اگر وقت کا قطب بھی ہے, وقت کا ابدال بھی ہے, اگر غوث اعظم بھی ہے, اگر وقت کا ولی بھی ہے, دستان کھول کے سن لو, مصطفیٰ فرماتے ہیں کتنے بڑے کیوں نہ ہو جاؤ, جب یہ تمہاری ماں بن گئی تو تمہاری جنت اس ماں کے قدموں میں ڈال. دیکھو کس طرح ہم بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں. دنیا کے ظالموں, تم کہتے ہو کہ اسلام بیٹیوں کو نہیں بچاتا. ہم بیٹیوں کو بچانے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے. مدینے کا سما ہے, مدینے کی گلیاں ہے, یہودی کی بیٹی ہے اور اس کو پکڑنے والے بھی یہودی ہیں, اس کو پکڑنے والے بھی غیر مسلم ہے, اور اس غیر مسلم کی
बेटी की चादर को जब छीना है तो पुकार के कहती है, हाय रे मैं मोहम्मद के मदीने में बेआबरू हुई जाती हूँ। ये आवाज एक मुसलमान के कान में पहुंचती है जो बाहर से काम करके आया था, अभी पहला लुकमा उठा रहा था कि लुकमे को छोड़ता है, एक हाथ से अपनी तलवार को उठाता है, बाहर निकलता है। बाहर निकल के क्या देखता है, एक बेटी है जिस बेटी की आबरू को लूटने के लिए 2-4 लुटेरे लगे हुए हैं। ये फौरन सामने आता है, कहा खबरदार 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 खबरदार, ये मेरे मोहम्मद का पाक मदीना है, इसे नापाक करने की कोशिश न करना। वो गैर मुस्लिम कहते हैं, तुम मुसलमान हो और हम गैर मुस्लिम हैं, तुम नबी का कलमा पढ़ते हो, हम नबी का कलमा पढ़ते नहीं है, ये बेटी भी गैर मुस्लिम है, तुझे क्या मतलब, तू अपने घर में चला जा। मगर मुसलमान कहता है ये बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की क्यों ना हो, बेटी बेटी होती है, चाहे गैर मुस्लिम की बेटी क्यों ना हो। ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, मुस्लिम बेटियों की आबरूओं को नोचने वालों, हिंदुस्तान के कुत्तों और तालिबों, कान खोल के सुन लो, हमारा धर्म बेटियों की रक्षा और सुरक्षा की हिफाजत की इजाजत देता है, उनकी आबरू को लूटने की इजाजत नहीं देता। आज के ये ढोंगी ये कानून बना रहे हैं कि इनकी बेटियों को घरों में खींच के लाओ जायज है, इनकी बेटियों की आबरू लूट लो जायज है। आज आरएसएस के कुत्ते और न जाने कितने जालिम मुस्लिम बेटियों की आबरू को लूट रहे हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने भी कल ऐसा किया था। मगर मैं इन जालिमों से कहना चाहता हूँ, ये मेरा मोहम्मद है, ये मेरे मोहम्मद का गुलाम है, ये मोहम्मद का मदीना है, गैर मुस्लिम बेटी है और उस बच्ची की आबरू लूटने वाले भी गैर मुस्लिम है। और वो बेटी क्या कहती है, हाय रे मैं मोहम्मद के मदीने में बेआबरू हो जाती हूँ। वो जानती थी अगर कोई इज्जत बचा सकता है तो मोहम्मद या मोहम्मद का गुलाम हमारी हिफाजत कर सकता है, इसलिए वो गुलाम रसूल आगे आ जाता है और वो कहता खबरदार 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 खबरदार, मोहम्मद के इस मदीने को नापाक करने की कोशिश न करना। वो कहता है कि क्या मतलब, तू चला जा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मोहम्मद का सच्चा गुलाम हूँ, ये मोहम्मद का पाक मदीना है, इसे नापाक नहीं करने देंगे। बिल आखिर उन दोनों में और उन इस मुसलमान में मुकाबला शुरू हो जाता है। उसने उन दोनों को कत्ल कर दिया और खुद भी इतना जख्मी हो गया कि आखिर में कत्ल करने के बाद शहीद हो गया, खुद शहीद हो गया। हमारा मजहब, हमारे मजहब इस्लाम के मानने वाले ये दर्श देते हैं कि बेटी की हिफाजत के लिए अगर जान लुटानी पड़े तो अपनी जान को लुटा देना, मगर बेटी की आबरू का सौदा हरगिज़ न करना।